जी, हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। द फिल्म रिलीजेस ऑन द 29th of August और हम बहुत ही खुश हैं। अभी we'll be going into the promotions now in the next few weeks and very very excited, and I'll leave it to Kunal because he's the director who's been with the film from the inception. Leave it to him to tell you how the shoot went. राजा नटवरलाल नहीं, एक्चुअली ये जो फिल्म है एक शातिरों के ऊपर है। 420 जो करतब करते हैं लोग उनके ऊपर है, जो जिनको हाथ की सफाई आती है। और ऐसा देखा जाए तो हमारे देश में जो सबसे मशहूर कॉन मैन थे वो थे नटवरलाल। इतना कि आजकल वो एक निक नेम हो गया। जो आदमी कौन करता है लोग बोलते हैं कि यार वो नटवरलाल है। तो और कैरेक्टर का नाम जो है फिल्म में राजा है, तो दैट्स वाई द टाइटल राजा नटवरलाल। फिल्म का जो कैरेक्टर जो हीरो है वो हाथ की सफाई में क्या बोलते हैं टैलेंटेड है, और छोटे कॉन्स जो है वो करता है। वो एक पैदाइशी 420 है। She's a very very talented actress. She's actually based in Dubai most of the time, and she made the time to be here with us for the film. She's very very talented, and when you see the film you'll see that she suits the role very well. एक्चुअली हुमायमा के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लिए वो एक इंटरनेशनल एक्ट्रेस है। वो स्क्रीन टेस्ट के लिए आई थी। मैंने कुछ 50-60 गर्ल्स का जो स्क्रीन टेस्ट लिया था उसमें आई थिंक हर्स वाज द बेस्ट। और आई फेल्ट कि चलो आई शुड गिव हर द ड्यू, आई शुड बी ऑनेस्ट टू द स्क्रीन टेस्ट, एंड इफ शी इज़ द बेस्ट आई शुड कास्ट। स्टारकास्ट को ले जाएंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से इट विल बी टू टाइट इन टर्म्स ऑफ द प्रमोशन विंडो टू गो देयर। वील बी गोइंग टू दुबई फॉर श्योर, बट वील डेफिनेटली बी प्रमोटिंग द फिल्म इन पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। गाने तो हैं भयंकर भरे हुए हैं फिल्म में, बट देयर आर 5 इन ऑल। 5 है फिल्म। 5 है। वो तो ट्रेलर इज कमिंग आउट दिस वीक। हैव अ लुक। आप फिल्म देख लो ना, ट्रेलर देख लो। फिल्म You know, I'll let Kunal explain the film in detail, but it's a really interesting film about a small-time con artist who gets involved in something larger than what he had bargained for, and what happens after that. Really, really great fun, lots of suspense, lots of thrills. Imran doing what he does best. Great music. But many things in the I don't want to give away too much, but what I will tell you is that it is a quintessential Imran Hashmi film, and you're all going to enjoy it tremendously if you're an Imran Hashmi fan. I'm expecting great things from this movie. From the time that we heard the script, we fell in love with it. It's very exciting, lots of suspense, great thrills. Imran, as I said, in the space that he's most familiar with and is known best for. He's playing a very interesting character, a small-time con artist, who then has to grow through the film to become something that he didn't think he would. But very, very interesting. We've shot the film in Bombay, Dharamshala, and then a portion has been shot in my favorite city, Cape Town. No, I don't find it shooting hard to shoot in Mumbai. Actually, I like shooting in Mumbai. I am from Mumbai. I have this connect to the city. You need to know how to handle the crowd. It was actually most of the shooting in Mumbai was on the real streets of Mumbai and the real locations. So the major problem was handling the crowd, and that way I've done. This is my 4th film with Hashmi, and we like going to real locations. Whether it was my last film where we shot in Delhi or this film, Streets of Mumbai. Hashmi is very comfortable and knows how to talk to his fans and people that are there on the streets, and he just helps with that part of the shoot. I think he doesn't take himself too seriously. So he comes, he delivers, he knows that he's working. We are working. We are all there to take the film to the next level and do the best that we can do. And I think that I really like that about it. हमारे फिल्म में एक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं जिया, और अनफॉर्चुनेटली आज ये आपसे बात नहीं करेंगी क्योंकि इनका एक्चुअली मीडिया इंटरेक्शन 18th को है। 18th जुलाई को है, और तभी हमारा प्रोमो लॉन्च हो रहा है। तो सिर्फ देखिए, बात मत कीजिए। फर्स्ट लुक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा किया, और ऑफ कोर्स फैमिली फंक्शन था, सभी इंजॉय करते हैं। मैंने भी बहुत enjoy किया। एक्चुअली कैरेक्टर तो वही है, हाथ की सफाई का आर्टिस्ट है, और एक फ्रॉड है, एक स्मॉल टाइम फ्रॉड है, और जो पहली बार अपनी ज़िंदगी में एक जो बड़ी 420 करता है, और किस तरह वो एक बहुत बड़े विलन से पंगा लेता है फिल्म में। तो उसके बारे में है। एक स्ट्रॉन्ग रिवेंज वेंडेटा एंगल भी है फिल्म में। वेल, जिस तरह द वे द टाइटल सजेस्ट, इट्स नटवरलाल, और अगर आपने नटवरलाल के बारे में पढ़ा होगा, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, लेजेंडरी
कॉनमैन इन द कंट्री, और इस कैरेक्टर के बारे में ये कहीं इस आदमी को आइडलाइज करता है और वो उसकी तरह बनना चाहता है. एंड it's about a man who wants to learn the biggest game, the biggest fraud scam of his life, और किस तरह वो इस बड़े आदमी से पंगा लेता है. Well, अभी शुरू हो रही है फिल्म सितंबर में, हमारी अधूरी कहानी, जो सितंबर 16 को फ्लोर पे जा रही है. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. मेरी पहली आउट एंड आउट लव स्टोरी है. अभी तक मैंने लव स्टोरी में कोई किरदार निभाया नहीं है. इट्स अ स्पेस दैट थोड़ा कॉशियस था टू एक्सपेरिमेंट विद. जब तक मुझे ये स्क्रिप्ट, जब मैंने भट्ट साहब से सुनी स्क्रिप्ट, आई रियली लाइक इट. आई लव द कैरेक्टर. सभी कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं. बहुत ही हार्टफेल्ट कहानी है, बहुत ही टचिंग कहानी है, बहुत ही ड्रामेटिक है. एंड इट्स आवर टीम अगेन. हमारी पिछली फिल्म मर्डर 2 थी, जो कमाल की फिल्म थी. डन ग्रेट बॉक्स ऑफिस. सो वी कमिंग बैक अगेन. सो वेल, आई थिंक मेरे करियर डिसीजंस जो रहे हैं थोड़े सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी रहे हैं, क्योंकि ट्रेड कहीं सोचता है कि ठीक है, इमरान हाशमी ने कमर्शियल फिल्में की हैं, फिर वो एक शंघाई के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, और एक घनचक्कर जो एक डार्क कॉमेडी है. बट आई थिंक दैट इज़ समथिंग आई लाइक टू स्ट्रेच माई क्रिएटिव स्किल्स विद. और मैं हमेशा इस तरह की फिल्म करूँगा जिस तरह कमर्शियल बॉक्स ऑफिस सक्सेसेस होते हैं या कमर्शियल मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्में होती हैं, जिस तरह राजा नटवरलाल है. उसके साथ साथ मैं एक और फिल्म आ रही है जो एक इंटरनेशनल फिल्म है, जो दानिश तैनोविक की फिल्म है, जो अभी हम फेस्टिवल्स, हालांकि अभी टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए जाने वाले इन नवंबर. तो आई थिंक इट्स अ गुड बैलेंस, मेन स्ट्रीम एंड ऑल्सो अ बिट ऑफ नीश सिनेमा. आई गॉट हर्ट इन द शूट. आई हैव बीन शूटिंग फॉर मिस्टर एक्स. So I got hurt. Why? What else would it be? I mean, हमारे जो ओवरसीज़ प्रमोशंस होते हैं फिल्म के लिए, बहुत सारे शहरों में जाना पड़ता है. ऑब्वियसली इंडिया में बहुत सारी प्रमोशंस हैं. उसके साथ साथ हम दुबई जाएंगे, पाकिस्तान भी जाएंगे. वील गो टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस. वेल, वो टैग लेने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. 10 साल की मेहनत मेरे पीछे है. तो आई नो, लेकिन उसके लिए आपको चार फिल्में करनी पड़ेंगी 1 साल में, 10 सालों तक. तो उसके बाद कहीं आपको टैग मिलेगा. बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर. बहुत ही सक्सेसफुल उन्होंने आई थिंक 3 या 4 बैक टू बैक हिट्स दिए हैं. शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर एंड आई फॉलोड एवरी फिल्म ऑफ हर्स. आई लव्ड हर इन स्टूडेंट ऑफ द ईयर. तो यस, आई डोंट नो अबाउट दैट इन पर्टिकुलर. आई हर्ड अबाउट सलमान रिसेंटली. देखिए, मैं उनकी तरफ से नहीं बोल सकता हूँ. आई थिंक हर शख्स उनकी जगह सही होता है. उनका भी एक पर्सपेक्टिव है. शायद वो गुस्से हो गए थे. he has his own perspective to it. बस यही चाहूँगा कि एक मीडिया उनके बीच सुलह हो जाए. और it's a give and take relationship. I think मीडिया और सेलिब्रिटीज़ का, सेलिब्रिटीज़ के बगैर आप छापोगे क्या, और आपके बगैर हम छपेंगे कैसे. तो आई थिंक एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है. दोनों की दुकानें साथ साथ चलनी चाहिए. तो बेहतर ये होगा कि वी somewhere learn to live in a certain synergy and peace and calm. देखिए, पहले तो मैं इनके बारे में पढ़ता नहीं हूँ. I generally don't read the tabloids, क्योंकि if you don't read the tabloids, you're uninformed. If you read them, you're misinformed. आप भी जानते हैं कि कभी कभार बहुत सारे gossips और rumors जो होते हैं, they're fabricated by people themselves to keep them in the news. I think डेफिनेटली अगर आप मीडिया को इस्तेमाल करोगे और कहीं आपको पब्लिसिटी मिल रही है, यू हैव टू गिव द मीडिया दैट मच स्पेस. यू हैव टू, एंड इवन मेरे फिल्म के प्रमोशंस के लिए आई मेक श्योर दैट ऑलवेज जो मीडिया इंटरेक्शंस होते हैं, दे आर एज गुड एंड एज जस्ट काइंड ऑफ गो बाय विद सर्टन, आई थिंक विद पीस एंड काम, एंड आर वेरी सिविल इन देयर कॉन्डक्ट. आई थिंक हाईलाइट इस फिल्म की ये है कि आई थिंक 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद मैंने बैक टू बैक फिल्में की थी जो कमर्शियल फिल्में थी. राज थी, मर्डर थी, जन्नत, डर्टी पिक्चर. तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन अभी वापस आ रहा हूँ एक कंप्लीट मेन स्ट्रीम फिल्म के साथ जो इज़ कम्प्लीटली अप माई एली. इट्स गॉट द रोमांस, इट्स गॉट द हीरो विलन कॉन्फ्लिक्ट, इट्स गॉट द सॉन्ग्स, इट्स गॉट द किसेस. सो या, इट्स गॉट ऑल ऑफ दैट. मैं उसको अपनी फिल्में नहीं दिखाता हूँ. वो अभी सिर्फ 4 साल का है. जब 18 साल का हो जाएगा तो मेरी फिल्में देखेगा. अभी बहुत वक्त है. उसको पता है कि उसका फादर एक्टर है. Great. Thank you.